Okay, so I think maybe others might be joining or they may join later. So I shall begin now. So I welcome you all to your growth and learning webinar. Since you have chosen to enroll today in this and have some learnings, and I'm sure by the end of this webinar, you will have at least one thing to learn which shall be very much useful in your exams. Okay. So with that hope, I welcome you all to this webinar. And I want you all to please pat your back once since you have chosen to be a part of this webinar to learn something valuable in your life. Please do it right now. Okay, so we shall start. So the very first question which I have for you all is, if you have to climb a place, say 5 floors above, and you have stairs wherein the steps are, one step is here, okay, the one step is here and another step is here. Tell me, how are you going to climb this? So the distance between the steps is like of the height of half a floor. So tell me, how are you going to climb that? You have to reach to the fifth floor and you have a staircase whose stairs are at height of half floor each. So how are you going to climb that stairs? Anyone? Please be interactive. This is not your exams and I'm not going to give any marks for this. Every answer can be right. So please be participative. You will learn more when you will also participate. Otherwise, this shall become a lecture. Please unmute yourself. You can answer. Anyone? I hope everyone has understood the question. Shall I repeat it? You can also write in the chat box. That is also fine. Okay, fine. So you have to go from ground floor to fifth floor. Okay. And there is a staircase. But the thing is that in that staircase, the stairs are at a distance of half floor. आपको 0 से 5th फ्लोर पर पहुंचना है. वहां पे एक सीढ़ी रखी हुई है जिसके जो स्टेयर्स है ना, जिनसे आप चढ़ के ऊपर जा सकते हो, वो हाफ फ्लोर की दूरी पर रखे हुए हैं. ठीक है. तो अब आप कैसे क्लाइंब करोगे उस स्टेयर को और पहुंचोगे 5th फ्लोर पर? देयर इज ओनली दिस. ये एक ही सीढ़ी है और इसके स्टेप्स इस तरीके से है और अब आपको 0 से 5th फ्लोर पर पहुंचना है. प्लीज आंसर, कैसे पहुंचेंगे? यस, एनीवन? रोप लेके. ठीक है. Others also please answer. Okay, I'll repeat the question once again. Is Hindi okay for everyone? आप 0 फ्लोर पर हो अभी और आपको 5th फ्लोर पर पहुंचना है. वहां पर एक सीढ़ी रखी हुई है जिसके जो स्टेयर्स है, यूजुअली स्टेयर्स होते हैं वो 1-1 फुट या उससे कम डिस्टेंस के गैप पे होते हैं. So it is very easy for us to climb and reach. यहाँ पे कंडीशन ये है कि स्टेयर्स जो है वो हाफ फ्लोर के डिस्टेंस उतने हाइट पर है. अब आपको 5th फ्लोर पर पहुंचना है तो आप कैसे पहुंचोगे?
सो हमारे पास एक आंसर आया है कि हम रोप की हेल्प लेंगे. आई एम वेटिंग फॉर अदर आंसर्स. Please write your answers or you can unmute yourself and say if you wish to. You can type, no problem, if you are not able to unmute yourself. Okay, now you will be able to unmute. You can unmute and answer. By the help of rope, we can climb the stairs. Sorry, can you please repeat? By the help of rope, we can climb the stairs. So the Yeah, height so of the stair is climbing, there is this condition that it is at a height of half floor. So how you will be able to climb? That is the question. See, usually जो stairs होते हैं ना, इतना distance होता है. So you can easily climb them. अब यहाँ पे डिस्टेंस आप इमेजिन करो, हाफ फ्लोर जितना डिस्टेंस है, जितना आपका 10 स्टेप्स का जो भी हाइट होता होगा, 10 to 15 स्टेप्स, उतने हाइट पर एक एक स्टेप है. Okay, so we have one answer, use ladder for each step. So Gautam, can you please elaborate this? He is very close to the actual answer. Others can also think over this. Any more answers? सी आंसर्स ना आप सबको पता है. जब मैं आंसर बताऊंगी तो आप लोग बोलेंगे हाँ ये तो हमको पता ही था. ओके, एनी अदर आंसर्स? ठीक है. सो आई थिंक हाँ गौतम ने कहा है वी विल यूज लेडर्स फॉर ईच स्टेप्स. And Shabazz is saying that we'll make holes in between. Shabazz, can you please explain bit? ठीक है, तो usually, okay, I'll come to the answer. Shabazz, you have anything to say? ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है ना, व्हेन वी ज्वाइन सीए कोर्स, तो हमको नहीं पता होता है, हमें सिर्फ ये पता होता है कि अभी हमने रजिस्ट्रेशन करा है, हमें सीए फाइनल तक पहुंचना है, फाइनल क्लियर करना है, एंड वी वांट दैट प्रीफिक्स सीए कि हमारे नाम के आगे सीए लगाना है. ठीक है. नाउ व्हेन यू एंटर द कोर्स, तो हमें लगता है कि हाँ यहाँ से इतना जाना है एंड वी विल हैव स्टेयर्स और हम चले जाएंगे. ठीक है, ये हम सब ऐसा सोचते हैं एंड दैट इज राइट, उसमें कोई मतलब गलत बात नहीं है. अब होता क्या है कि जो स्टेयर्स है ना, ये इतने डिस्टेंस पर होते हैं. कमिंग टू सीपीटी और फाउंडेशन, वो सबको आसान लगता है. ठीक है, वहां से आप आईपीसीसी में आते हो, इंटरमीडिएट में आते हो, वहां पे भी कंपैरेटिवली उतना डिफिकल्ट नहीं लगता है. ठीक है, कोर्सेज नो डाउट बहुत वास्ट सिलेबस होता है और वहां पे 9 मंथ्स होते हैं, तो आई थिंक वो टाइम इनफ होता है. अब उसके बाद जब आप आर्टिकलशिप ज्वाइन करते हो और फाइनल्स की एग्जाम्स देनी है ना, यहाँ पे आपका एक्चुअल एक टफ फेज थोड़ा सा आ जाता है, बिकॉज आर्टिकलशिप आपको 10 टू 6 PM 10 AM टू 6 PM आर्टिकलशिप में जाता है. मॉर्निंग में क्लासेस, इवनिंग में क्लासेस, और फिर टाइम इतना रहता नहीं है.
और हम उस टाइम जैसे अभी हम लोग सोच रहे थे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था उसका आंसर बहुत ही सिंपल था, जैसे ये किसी ने बोला भी था कि यूज लैडर फॉर ईच स्टेप्स। तो हमें क्या करना है, जो स्टेयर्स का जो डिस्टेंस था हाफ फ्लोर्स का, उसके बीच में हमें एक एक लैडर लगाते जाना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस लैडर? दिस लैडर कैन बी योर गाइडेंस, जो आप सीनियर्स से ले सकते हो, अपने फैकल्टीज को रीच आउट कर सकते हो। द मेन लूप होल हियर इज कि इंस्टीट्यूट क्या हमारा कॉलेज जैसा या स्कूल जैसा कोई सिस्टम नहीं होता है। So there is no one directly to guide you, to give you the proper planning कि ऐसे कर लो ऐसे कर लो। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम स्टूडेंट्स फेस करते हैं। अनदर थिंग जो स्टूडेंट्स बहुत फेस करते हैं वो होता है एक कांस्टेंट मोटिवेशन, बिकॉज कहीं ना आप थोड़ी आगे पहुंच के कहीं पे यू हैव दैट टेंडेंसी कि बस अब नहीं हो रहा है, लेट्स लीव दिस, ठीक है। यू रिक्वायर दैट डेली पुश। एटलीस्ट फाइनल्स के लेवल पर ये चीज एक्सपीरियंस होती है कि मैनी टाइम्स हमको लगता है कि ठीक है यार अब नहीं हो रहा है, अब छोड़ देते हैं ये कोर्स, इतना सारा सिलेबस है, ये है, मतलब हमारे पास 100 रीजंस होता है टू गिव अप। वहां पे टू फाइंड आउट दैट वन रीजन टू होल्ड ऑन, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले व्हेनेवर यू आर ज्वाइनिंग एनी कोर्स, ये सिर्फ सीए के लिए एप्लीकेबल नहीं है, कोई भी कोर्स हम ज्वाइन करते हैं प्लीज थोड़ा सा सीनियर से बात करिए, ठीक है। यू विल गेट सम गाइडेंस। उसमें क्या डिफिकल्टीज, जैसे आप कोई भी ट्रिप प्लान करते हो, सो यू ट्राई टू फाइंड आउट, यूट्यूब पे जाते हो, गूगल पे जाते हो, गूगल मैप्स यूज करते हो, मतलब काफी सारी चीजें आप फाइंड आउट करने का ट्राई करते हो कि मुझे इस जगह पे जाना है, तो इस जगह पे क्या क्या है, कैसे जाएंगे, ठीक है। यू इवन ट्राई टू फाइंड आउट कि रोड से जा रहे हो तो रूट कौन सा लेंगे, ठीक है, वहां पे कहाँ पे बीच में स्टॉपेज लेना है। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक आउट हियर इज कि एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग होती है, ठीक है। इफ यू गो बैक टू योर स्कूल डेज, कॉलेज डेज, तो वहां पे टीचर्स के पास ना एक पूरा ब्लूप्रिंट रहता है कि उनका ये पूरा सिलेबस है, अब इतने चैप्टर्स हैं, उनको इन दिस मंथ दे हैव टू फिनिश। अगेन उस पर्टिकुलर मंथ के अंदर उनका पूरा एक शेड्यूल होता है कि इस वीक में इतने चैप्टर्स या इतने टॉपिक्स होंगे, यहाँ पे इतने दिन की छुट्टी होगी। सो हर एक चीज प्लान होती है। तो आपको भी फॉर इंटर एंड फाइनल्स स्पेशली सब कुछ अच्छे से प्लान करना है। नाउ दिस प्लानिंग में हम क्या करते हैं, सपोज वी हैव 100 डेज, ठीक है। आज से 100 डेज के बाद लेट्स अज्यूम कि 100 डेज के बाद हमारे एग्जाम्स है, तो यहाँ पे हम क्या प्लान करते हैं, हम पूरे 100 डेज का प्लान बनाते हैं। एग्री एवरीवन? ठीक है। अब होता क्या है 100 डेज में 10 डेज का कुछ तो आ गया, ठीक है, सम अनसर्टेन इवेंट, एंड यू हैव टू गिव योर 10 डेज इन दैट। अब क्या हुआ, 90 डेज बचे। अब जो 90 डेज है ना, उसमें भी हम क्या करते हैं, जो 90 डेज की प्लानिंग है ना, हम वो नहीं करते। हम पता है क्या करते हैं, यार ये ना 10 डेज चले गए, अब क्या होगा, मुझे तो इतना सारा इसमें करना था, ये रह गया वो रह गया, अभी एक और इवेंट आ रहा है, 2 दिन उसमें चले जाएंगे। हैपन्स? यस। तो यहाँ पे हम क्या गड़बड़ कर रहे हैं, जो 100 डेज है ना, उसमें से लेट अस प्लान फॉर 80 और 85 डेज। यस, प्रोक्रेस्टिनेशन पर भी मैं आती हूँ, ये भी हम बहुत करते हैं। अब प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं, बिकॉज समवेयर आपका जो प्लान है ना, उसमें थोड़ा सा एरर होता है। अभी जैसे मैंने बोला 100 डेज से 10 डेज का अनसर्टेनिटी आ गया, और सीए स्टूडेंट्स हो तो कंटिजेंसी तो सबको पता ही है, राइट। तो जो कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ते हैं ना, उनको थोड़ा सा लाइफ में अप्लाई करके देखो, इट विल बी वेरी हेल्पफुल।
कंटिजेंसी को अप्लाई करो, और दूसरा एक बोलूंगी मैं संक कॉस्ट, ये जो लिखा है वी रिग्रेट लेटर, उसके लिए आप क्या यूज करो, संक कॉस्ट। क्या होता है, जो कॉस्ट ऑलरेडी इंकर हो चुके हैं, अब उनके बारे में सोच के कोई फायदा नहीं है, ठीक है, दे आर ऑलरेडी इंकर्ड, वो पास्ट हो चुका है, अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते, इट इज इररिलेवेंट फॉर टेकिंग डिसीजन। सेम थिंग आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है। ये जो अनसर्टेनिटी, जो भी कंटिजेंसी वाले इवेंट्स आते हैं, तो उसके लिए आप पहले से ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते हैं ना, कॉस्टिंग में एक चैप्टर रहता है, ठीक है, तो वहां पे आप बजट निकालते हो। तो जब आप बजट इज योर प्लान दैट यू आर मेकिंग, तो उसके अंदर आप 5% एरर के लिए स्पेस रखिए, ठीक है, एट द मैक्स 10% के लिए स्पेस रखिए। अब ये आप खुद से एस्टिमेट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टेंसेज एंड योर पास्ट हिस्ट्री, ठीक है। अब देर आर मेनी स्टूडेंट्स जो ऐसा होता है कि वो लोग 10 डेज का जो पीछे छूट गया है, उसमें से एटलीस्ट 2-3 डेज का जो है वो एक एक दिन में करते करते वो 10 डेज को नेक्स्ट 15 डेज में कवर कर लेंगे, ठीक है। तो आपको अपनी ये कैपेसिटी और ये चीजें आप एस्टिमेट कर लीजिए, और प्लानिंग ही पहले से जब आप कर रहे हैं तब 100 डेज में से 20 डेज एटलीस्ट आप रख दीजिए कंटिजेंसी के लिए। अब आपको 80 डेज 100% पढ़ाई करनी है, और इस 80 डेज में से भी आप वीकली वीकली प्लान करिए, ठीक है। और वीकली जो भी आपका प्लान बनता है उसके अंदर से आप एक दिन को बफर रखिए, ठीक है, या फिर उसको आप ऐसा बोल सकते हो कि दैट इज योर लीव डे, जैसे संडे होता है। तो आप 6 डेज में 100% जो भी आप प्लान करते हो, 6 आवर्स 8 आवर्स, अब जो 6 आवर्स और 8 आवर्स आप प्लान करते हो ना, उसमें भी 100% प्रोडक्टिविटी नहीं आएगी। तब क्या करते हो, नेक्स्ट डे फिर से यही कि कल मुझे ये टारगेट कंप्लीट करना था, इतना नहीं हुआ है, कैसे होगा, उसके चक्कर में नेक्स्ट डे का आधा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अब क्या करना है, जो नेक्स्ट डे जब ऐसा होता है कि कल का इतना बाकी रह गया है, अगर कल का इवन यू हैव रीच्ड मोर देन 70% और 80%, इट्स ओके। नेक्स्ट वीक में आप थोड़ा और अच्छे से इसको प्लान कर लो, तो जो आप जहाँ पे आप 70-80% रीच कर रहे हो, उसको आप 90% 95% तक रीच कर सकते हो। और जो आपका जो कोर्स बचता है, अभी यहाँ पे आप ये बोलोगे कि अभी हमने नेक्स्ट वीक के लिए जैसे प्लान करे थे कि 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, बाय रीचिंग टू 80 और 90% ऑफ एफिशिएंसी, ऐसा हो रहा है कि 10 में से 8 चैप्टर्स ही कर पाए हैं, तो 2 चैप्टर्स बच गए, उनका आप क्या करें, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी एक चैप्टर छोड़ दोगे एंड इट विल बी ओके, ऐसा इसमें आप नहीं कर सकते हो। तो ये जो 2 चैप्टर्स बच गए हैं, ऐसा हर एक वीक 80 डेज है, अगर हम 10 डेज के चंक में डिवाइड करके जाए तो 8 टू 16 चैप्टर्स बच जाते हैं। आई एम अज्यूमिंग कि एवरी डे 80% आपने करा है, ठीक है। तो 16 चैप्टर्स आपके बच गए, इन 16 चैप्टर्स को आप कहाँ एकोमोडेट करोगे, जो 20 डेज हमने छोड़ कर रखे थे। 20 डेज में 16 चैप्टर्स हो सकता है ना, तो उस 20 डेज में आप वहां पे अकोमोडेट कर लो। अब सपोज कि वो 20 डेज में से शायद 10 डेज वेस्ट हो गए फॉर एनी रीजंस, सॉरी वेस्ट इज रॉन्ग वर्ड, फॉर एनी रीजंस वो 10 डेज आप यूटिलाइज नहीं कर पाए, ठीक है। इन दैट केस क्या होगा, 16 में से एटलीस्ट 8 चैप्टर्स विल बी एबल टू डू, बाकी बचे 8 चैप्टर्स। अगर आप पूरा टेंशन लेके चलते तो शायद जो 20 आपके 16 चैप्टर्स में से 8 चैप्टर्स अभी बाकी रह रहे हैं, उसके बजाय आई थिंक शायद 50% या 60% कोर्स कंप्लीशन पे पहुंच पाते हैं। और फिर से वही टेंशन वाली चीज है कि अभी एग्जाम्स आ गए हैं, अब क्या करें, ये बाकी है वो बाकी है। तो इसके लिए एक और चीज मैं बोलूंगी कि आपको, ठीक है, हाँ, ओके,
The whiteboard, okay. Why is it not happening? Okay. I'm sorry. Okay, so there is some issue with whiteboard, so I won't be able to use that. Okay, so all of you please do one thing. Take a blank paper, उस पे एक बड़ा सा रेक्टेंगल बनाइए और उसके अंदर सर्कल्स बनाने हैं, ठीक है। और सारे सर्कल्स ना एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके जितने मैक्सिमम सर्कल्स आप बना सकते हो इन दैट रेक्टेंगल स्पेस, एक पहले रेक्टेंगल स्पेस बना लो, उसके अंदर जितने सर्कल्स बना सकते हो ओवरलैप करो, कुछ भी करो, इट्स फाइन। जितने मैक्सिमम पॉसिबल सर्कल्स आप बना सकते हो उतने सर्कल्स बना लीजिए। Sorry, there was power breakout. So all of you, have you please drawn? अब आपको दूसरा रेक्टेंगल बनाना है बाजू में और उसमें एक सर्कल को सेपरेट रखिए, बाकी सारे सर्कल्स को फिर से ओवरलैप कर दीजिए। आई एम शेयरिंग स्क्रीन। सो आपको ऐसे ड्रॉ करना है, एक रेक्टेंगल है जिसके अंदर जितने मैक्सिमम सर्कल्स आप ओवरलैप कर सकते हो उतने कर लीजिए। दूसरे रेक्टेंगल में आपको एक सर्कल को सेपरेट रखना है और बाकी सारे सर्कल्स को ओवरलैप कर देना है।
ठीक है, सबको आइडिया आ गया ना कैसे ड्रॉ करना है? सो एवरीवन हैज डन। अब कोई मुझे इसका मीनिंग समझा सकता है हमने क्या ड्रॉ करा अभी? एनीवन? प्लीज हैव अ लुक एंड थिंक हम क्या कर रहे हैं। What meaning can you take out from the things which you have drawn just now? Correct. Confusion and clarity. Keep things simple. Okay. Others also please be participative. आप अनम्यूट करके नहीं बोलो, एटलीस्ट चैट बॉक्स में कुछ लिख दीजिए सो दैट आई नो दैट यू आर एक्चुअली लिसनिंग टू मी। ऐसा नहीं है सिर्फ लॉग इन करके साइड में रख के बैठे हो। ठीक है, सी एक आंसर आया है कंफ्यूजन एंड क्लैरिटी। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर फेसिंग कंफ्यूजन? हाँ, जब भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते कंफ्यूजन होता है, कौन सा चैप्टर करे, कौन सा सब्जेक्ट करे, कौन से बुक्स रेफर करे, क्या रेफर करना है, कैसे करना है। हाउ मेनी ऑफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज्ड? यस। तो इसका क्या सॉल्यूशन है? सो व्हाट यू हैव टू डू, जब भी आप जो भी से आपने प्लान बनाया, ठीक है, आपका वीकली प्लान रेडी है, तो आई थिंक उसके बाद और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार वीकली प्लान आपने बना लिया कि इस वीक में मुझे ये 10 चैप्टर्स करने ऑफ दीज 2 पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन ना सबसे पहले आपके माइंड में होता है। क्या होता है? अरे यार, इतने सारे चैप्टर्स बाकी है, उस चैप्टर में मैंने ये नहीं करा, वहां पे ये छोड़ा था, इस फ्रेंड ने तो ये भी कर लिया यार, उसने तो वो भी कर लिया, अरे नहीं नहीं इसका तो ये सब बाकी है। ये सारी चीजें माइंड में चलती है, राइट? तो सबसे पहले हमको वर्क यहाँ करना है। जिस टाइम पे जो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लिया है, जो भी एक पर्टिकुलर टॉपिक कर रहे हैं, हम उसी टॉपिक के बारे में सोचेंगे, उसी टॉपिक को 100% फोकस करना है। ठीक है, ये चीज कैसे आएगी? अब इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि फोकस नहीं होता है, कंसंट्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? दो बहुत ही सिंपल चीजें बोलूंगी मैं। एक तो whenever you are taking any subject, जब आप स्टडी स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उसके पहले डू सम डीप ब्रीदिंग करो। जितना आप 5 मिनट्स कर सकते हो, 2 मिनट्स कर सकते हो, इवन 1 मिनट चलेगा फॉर स्टार्टिंग। तो ट्राई करो कि एटलीस्ट आप 5 मिनट्स के लिए डीप ब्रीदिंग कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो माइंड इतनी 10 जगहों पे घूम रहा है ना, वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। और जब माइंड शांत होगा ना, तो आप आराम से आप फोकस कर पाओगे, कंसंट्रेट कर पाओगे। ठीक है, उसके साथ एक और चीज करनी है, बहुत ही सिंपल है। जब आपका 5 मिनट्स 2 मिनट्स जितने भी टाइम के लिए आप डीप ब्रीथिंग कर रहे हो उतना हो जाए, उसके बाद 1 मिनट के लिए ना पॉज लेना है। कुछ भी नहीं सोचना है, कुछ भी नहीं करना है, बस सिंपल बैठना है और जो भी हो रहा है माइंड में, जो चीजें आ रही है उसको सिर्फ ऑब्जर्व करो। उस पर रिएक्ट नहीं करना है, कुछ बोलना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जो जैसा है बस उसको ऐसे ही ऑब्जर्व करो। ठीक है, एंड देन यू स्टार्ट रीडिंग। हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू ट्राई दिस एटलीस्ट? हाँ, एनीवन हु इज गोइंग टू ट्राई दिस? या कोई कर रहा है ऑलरेडी एंड व्हाट इज देयर एक्सपीरियंस, कोई शेयर करना चाहेगा? Yes, Mahavir, you can please unmute yourself and share.
ये सब करने से ना जो कंसिस्ट ये जो बिफोर स्टडी ये डीप ब्रीथिंग करने से जो कंसंट्रेशन है वो एक जगह स्थिर रहता है। कंसंट्रेशन कैसे रहता है? मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे ही अपना फोकस रहता है, फोकस इधर उधर नहीं जाता है। करेक्ट। अदरवाइज क्या होता है ना, जैसे अगर ये नहीं करते हैं तो अपन बैठे यहाँ रहते हैं, बुक आगे खुली रहती है, सराउंडिंग होता है, कोई यूएस लंदन उस साइड में, कोई कोई तो अंतरिक्ष में चले जाते हैं। यस। तो आपको कोई डिफरेंस लगता है? इज इट इम्प्रूविंग योर स्टडीज? ओके, सी वी हैव वन लाइव एग्जांपल। ठीक है, सो टेल मी हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू ट्राई दिस? एटलीस्ट एक वीक करके देखो, नहीं अच्छा लगता है डोंट डू इट। ठीक है, प्लीज नोट डाउन, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, दे विल ब्रिंग यू वेरी ह्यूज एनॉर्मस रिजल्ट्स। इसको अगर आपने कंसिस्टेंटली फॉलो किया ना 2-3 मंथ्स 6 मंथ्स, तो यू विल ऑल्सो रियलाइज कि आपकी जो एफिशिएंसी है ना, पहले जो जितनी पढ़ाई आपकी 2-3 घंटे में होती थी ना, वो अभी 1.5-1 घंटे में होना शुरू हो जाएगी। और इसको ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ते टाइम करिए, दिन में जितनी भी बार आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हो करिए। इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो फिर क्या होता है, व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर लॉन्ग आवर्स या फिर कोई ऐसा हैवी टॉपिक आप कर रहे हो, उसके बाद बोर होके जनरली व्हाट इज योर टेंडेंसी, क्या करते हो? मोबाइल उठाते हो? हाउ मैनी? मैं तो मोबाइल ही लेती हूँ, आप लोग क्या करते हो? यस। और मोबाइल लेके क्या करते हैं हम? यूट्यूब, फेसबुक या कोई और एप्स? यस। और कितना टाइम जाता है? 5 मिनट्स, मोर देन 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, हाफ एन आवर, 1 आवर, 1.5 आवर, 2 आवर्स? या फिर कभी हमने नोट नहीं करा कितना टाइम जाता है, एंड देन पता चला फिर से वही टेंशन वाली गाड़ी में वापस बैठ गए, अभी इतना सारा टाइम वेस्ट कर दिया, अब क्या करूं? तो क्या करना है? See, when you are doing any difficult chapters या कोई ऐसा heavy topic है which is ऐसा होता है कि it's quite draining your brain, तो उस टाइम पे क्या करना है? मोबाइल को बिल्कुल नहीं लेना है, बिकॉज मोबाइल से आप माइंड को रिफ्रेश नहीं कर रहे हो, आप माइंड को और यूटिलाइज करते हो, और यूटिलाइज कर रहे हो, आई विल नॉट से कि वेस्ट है, ठीक है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू एड एनी प्रोडक्टिविटी इन योर करंट गोल। ठीक है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो? एक तो जो मैंने एक्सरसाइज बोला आपको डीप ब्रीथिंग की, 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट्स ही आप करिए, यू विल फील रिलैक्स्ड। दूसरा आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा वॉक ले लीजिए, या फिर जैसे गार्डन या कुछ है अगर आपके बिल्डिंग में, वहां पे देखिए। और अगर कुछ नहीं करना है तो जस्ट 5 मिनट्स खुद के साथ बैठिए, कुछ भी मत करिए। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी चीजें ये आपको रिलैक्स करेगी। नाउ व्हाई आई एम सेइंग नो टू मोबाइल्स। अब होता क्या है कि आपने, चलो मान लेते हैं आपने 30 मिनट्स ही देखा, ठीक है, यूट्यूब देखा, कोई सीरियल देखा, कोई शॉर्ट्स देखे। अब क्या होता है, अभी तो आपने सिर्फ 30 मिनट्स देखा है और आपको लग रहा है हाँ मेरे सिर्फ 30 मिनट्स ही वेस्ट हुए हैं, बाकी का टाइम आई एम गोइंग टू स्टडी। अब आप बैठो पढ़ने, अब बुक लेके बैठ रहे हो आप, दिमाग में ना वो शॉर्ट्स चलेगा। हैपन्स।
कितने लोगों के साथ ये हुआ है? ठीक है, होता है ये। ठीक है, अभी पढ़ रहे हो अभी नहीं चलेगा शॉर्ट्स को, थोड़े टाइम के बाद जब इवन नेक्स्ट डे और लेट्स से एटलीस्ट एक वीक तक भी अगर आप पढ़ने बैठोगे ना, वो चीज कभी ना कभी माइंड में आएगी। अब क्या हुआ, जो आपने 30 मिनट्स का टाइम जो दिया था ना उसमें, अब वो बढ़ के 60 मिनट्स हो रहा है, 90 मिनट्स हो रहा है, 120 मिनट्स भी हो सकता है, और ये हमें पता भी नहीं चलता है कि ये 30 मिनट्स का इफेक्ट इतना बड़ा आ गया। तो इसके लिए इफ पॉसिबल वॉक करिए या फिर म्यूजिक सुनिए। म्यूजिक में भी आई विल सजेस्ट कि हो सके तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनिए, बिकॉज जहाँ पे आप लिरिक्स वाला म्यूजिक सुनेंगे तो वहाँ पे जैसे ही वो ट्यून या कुछ आएगा तो वो वर्ड्स आप खुद से गुनगुनाने लगते हो। यस, दे आर रिड्यूसिंग योर अटेंशन स्पैन। और शॉर्ट्स देखने से ना एक और चीज होती है जो इफेक्ट हमें समझ में नहीं आता है, दैट इज वी आर स्लोली लूजिंग पेशेंस। क्योंकि आप रिपीटेटिवली जब शॉर्ट्स देखते हो ना तो आपका माइंड एक पैटर्न को कैप्चर कर लेता है कि 2-3 मिनट्स 2-3 मिनट्स 2-3 मिनट्स। अब जब आप पढ़ने बैठोगे ना तो हर 2-3 मिनट्स के बाद आप पढ़ नहीं पाओ, बिकॉज आपका माइंड उस पैटर्न के लिए अब ट्रेन हो चुका है कि आप 2-3 मिनट्स तक ही कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, उसके बाद आपका फोकस, आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है। मेडिटेशन सजेस्ट करा जाता है, उसका यही रीजन होता है कि मेडिटेशन में आपको सिंपल बैठ करके ऑब्जर्व करना है। क्यों करना है? वहीं से आपका कंसंट्रेशन और फोकस इंप्रूव होता है। हाँ, सी नाउ आई एम नॉट एबल टू अटेंड अ क्लास ऑफ आवर्स। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज यू आर यूज्ड टू दैट शॉर्ट स्पेन थिंग्स, कि शॉर्ट्स होता है 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट्स का। अब धीरे धीरे जैसे जैसे आपको ये आदत होती है, आपको लगता है कि ठीक है आज हाफ एन आवर ही देखा है ना, क्या फर्क पड़ जाएगा इससे। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखोगे ना तो इसका बहुत ही ज्यादा कंपाउंडिंग का भी कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलता है। और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हम नोटिस भी नहीं करते, पता तब लगता है जब एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है उसका। एंड सेकेंड थिंग, जब वीडियो लेक्चर्स देखते हो आप, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो उसमें भी एक इश्यू होता है कि आप काफी टाइम से ऐसे लैपटॉप में बैठे हो या स्क्रीन के सामने बैठे हो, तो आपकी आईज में कभी पेन होता है, समटाइम्स योर आईज टर्न रेड। तो ऐसे में भी फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट 1 आवर 2 आवर्स तक उतना कंसंट्रेशन फोकस नहीं रह पाता। तो क्या करना है, आफ्टर एवरी 1 आवर कोई भी दूर की चीज को 2 मिनट तक देखिए। इफ पॉसिबल ट्राई टू सी सम ग्रीन कलर्ड ट्रीज या ऐसा कुछ अगर आपके पास है तो। यस, आईज एंड ईयर्स बोथ हैव पेन, ये भी होगा बिकॉज ठीक है, everyone is using electric things at your home। ठीक है, टीवी को आप 2 घंटे चालू रखिए, क्या होता है टीवी को, टीवी के पास जाके टीवी को टच करके देखिए क्या होता है। वो गर्म हो चुका होता है। ठीक है, यू विल इंस्टेंटली टेक अवे योर हैंड फ्रॉम दैट। व्हाई? बिकॉज द सरफेस इज वेरी हॉट। तो जब मशीन्स की भी ऐसे हालत होती है तो वी आर ह्यूमन बींग्स, वी टेंड टू गेट टायर्ड। और ये सिर्फ हमारे माइंड के लिए नहीं होता है, इवन आवर आईज गेट टायर्ड। और स्पेशली जिनको स्पेक्स है उनको थोड़ा और केयरफुल रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है, एवरी 1 आवर फॉर्म अ हैबिट टू स्प्लैश योर आईज विथ कोल्ड वाटर। ठीक है, दूर की कोई चीज देखिए, बिकॉज आप बहुत टाइम से एक सामने की स्क्रीन पर कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो। इवन सिंपल आप वाटर स्प्लैश करोगे ना, यू विल फील बेटर। उसके बाद 5 मिनट्स कुछ नहीं करना है, आईज क्लोज करके बैठिए 5 मिनट्स, और उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पर जाइए।
ठीक है, अब एक और मेजर थिंग विच आई वांटेड टू शेयर इज, कितने लोगों की ये आदत है कि मैंने आज के लिए 10 चीजें प्लान करी है, अभी मैंने 2 या 3 खत्म करी, उसके बाद मैं और 1-2 खत्म कर रही हूँ, 5 चीजें खत्म हो गई एंड आई एम हैप्पी। चलो 10 करनी थी, 5 तो कर ली मैंने, बाकी की 5 मैं कल कर लूंगी। हाउ मैनी ऑफ यू डू दिस? अरे मैं करती हूँ, कितने लोग करते हो ये तो बताओ, बी ऑनेस्ट, कोई यहाँ पे जज करने नहीं बैठा है। ठीक है, और 10 में से कितने लोग ऐसे हैं जो 6 चीजें कंप्लीट करके खुश होके सोने चलते कि हाँ भाई आई एम डन फॉर द डे। अब क्या होता है, नेक्स्ट डे फिर मैं यही करती हूँ, 10 चीजें करनी थी, मैंने 5 चीजें कर ली, कल के जितना तो कर लिया है, ठीक है ना, सो जाती हूँ, आगे का कल कर लेंगे। ये धीरे 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 करते कब हैबिट बन जाती है और फिर महीने भर का काम इकट्ठा हो जाता है, ये हमें पता नहीं लगता है। तो एक बहुत ही सिंपल सी हैबिट बना लो कि आज का काम आज खत्म करना है, बिना खत्म करे मुझे सोने नहीं जाना। ठीक है, क्योंकि आज का जो भी आपका प्लान है, अगर उसमें से कोई भी चीज बच जाती है, अगर 1-2 चीजें हैं तो ठीक है, आप नेक्स्ट डे में कवर कर लोगे, बट अगर, और ये भी वंस इन अ वाइल है तो ठीक है, धीरे धीरे करते अगर ये हैबिट बन गया ना, तो आप कभी चीजें टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाओगे, और उसका ऊपर से और टेंशन लेके जो आगे आप कंप्लीट करने वाले हो, नेक्स्ट डे जो 5 चीजें कंप्लीट करने वाले हो ना, वो 5 का 4 हो जाएगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ऐसा होगा नहीं अब तो नहीं होने वाला है, लेट मी स्किप दिस अटेम्प्ट, नेक्स्ट में दे देंगे, वहां पे शायद रैंक भी लेके आ जाएंगे। अभी से मस्त, मैं अभी से आज से कल से ही मैं प्लान करता हूँ और परसों से स्टार्ट कर दूंगा, होता है, फिर वो कल आता है, क्योंकि हमने बोल ही दिया कि कल करता हूँ, और वो कल कभी नहीं आता है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग क्या करो, वीकली जो भी प्लान्स है उसको प्रॉपरली, वीकली जो प्लान है उसको अच्छे से बनाओ, उसके अंदर एक दिन आपको लीव लेनी है, उस दिन आप नहीं पढ़ोगे, या फिर हाफ डे पढ़ लो, या फिर जो भी पेंडिंग बचा है उसको ही खत्म कर लो, बाकी का टाइम इज योर टाइम, और 6 दिन अच्छे से जो भी प्लान करा है उसमें से एटलीस्ट 80 to 90% खत्म करो, और जैसे एक वीक के लिए आप ऐसे प्लान करोगे ना, तो धीरे धीरे आपको आइडिया आ जाएगा कि नेक्स्ट वीक में किस तरीके से प्लान करना है। ठीक है, फिर जो नोट्स बनाने की बातें हैं, जो नोट्स आप जब भी वीडियो लेक्चर्स लेते हो उस टाइम पर आप नोट्स बनाइए, अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स बने हुए हैं, आप रिवीजन कर रहे हो, उस टाइम भी कुछ स्क्रिबल कर दीजिए, जो भी पॉइंट्स आपको लग रहे हैं कि ये चीजें मुझे याद नहीं रह रही, या फिर ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, या फिर ये कुछ ट्रिकी पॉइंट्स है। एंड एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, बिकॉज मई 24 में नया कोर्स एप्लीकेबल होगा, तो प्लीज एक्सपेक्ट कि नवंबर एग्जाम्स के पेपर्स थोड़े से डिफिकल्ट आएंगे, अभी मई के पेपर्स भी डिफिकल्ट थे ग्रुप 1 के, प्लीज एक्सपेक्ट कि ऐसे डिफिकल्ट पेपर्स होंगे, तो उस लेवल पे जाके प्रिपरेशन करो अगर नवंबर के लिए कर रहे हो तो, क्योंकि क्या होता है ना, हम प्रिपरेशन अपने हिसाब से करते हैं, फिर हम ब्लेम करते पेपर डिफिकल्ट आया था, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, तो एक पहले से एक प्री प्रिपरेशन रखो कि डिफिकल्ट आ सकते हैं, और आपको ये नहीं करना है कि पेपर में मुझे पास होना है, दैट शुड नॉट बी योर टारगेट, योर टारगेट शुड बी कि कैसा भी पेपर आए मुझे इतना होना चाहिए कि मैं 60 मार्क्स का बहुत अच्छे से लिख के आऊंगी, कहीं से भी पेपर आए, कैसा भी पेपर आए, उस लेवल का आप प्रिपरेशन करो, और ये 60 को 80 रख के प्रिपेयर करो, तो आप 60 तक 100% जा पाओगे। कुछ भी आप जब रिवीजन लेक्चर्स देख रहे हो, या जब भी लेक्चर्स देख रहे हो, थोड़ा सा डूडल बना लो, कोई शॉर्ट स्टोरीज बना लो, या फिर अपनी आवाज में ऑडियो रिकॉर्ड कर लो,
ये सारी चीज आपको कब काम आएगी, जब आपका जो 1.5 डेज होते हैं बिफोर एग्जाम्स, उस टाइम पे 100% सिलेबस को कवर करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नहीं कर पाओगे, इवन इफ यू डोंट स्लीप फॉर 1 आवर, वो नहीं हो पाएगा। वहां पे ये चीजें बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। और आप बहुत अच्छे से बुक्स में हर चीज को मार्क करके रखो फॉर दैट 1.5 डेज। एग्जाम के लिए नहीं बोल रही हूँ, 1.5 डेज की जो प्रिपरेशन करनी है उसको अभी करना है, और 1.5 डेज में आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो। तो जो 1.5 डे है ना, उसमें हमको सिर्फ रिकैप ही करना है। वो रिकैप कब होगा, जब आपके पास वो चीजें रेडी होगी, योर नोट्स, और नोट्स के अंदर भी स्क्रिबल करके उसको एक और बार शॉर्ट अगर बना सकते हो तो बना दो। ठीक है। फिर पेपर प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये तो आई थिंक सबको पता ही है। अब ठीक है, विथ वन लास्ट थिंग, अगर आप एक माउंटेन पे आपको चढ़ना है ना, तो क्या होगा, आप धीरे धीरे जब चढ़ना स्टार्ट करते हो ना, इनिशियली यू हैव टू मच ऑफ एंथुजियाज्म कि हाँ हम चढ़ लेंगे। फिर जब आप हाफ वे पहुंचते हो, वहां पे थोड़ा सा थकते हो, और जैसे जैसे व्हेन यू आर मूविंग मोर क्लोजर, तब आपके हाथ में ऑलरेडी, बिकॉज होल्डिंग ऑन टू दैट रोप फॉर टू मच टाइम, एक डिफिकल्टी लेवल आता है, वहां पे आपको लगता है गिव अप करना है। But that is the point when you need to hold it with even more strength. तभी आप पूरा पहाड़ ऊपर चढ़ पाओगे। Am I making sense? Again, second चीज है कि कॉन्फिडेंस में बहुत इश्यूज हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कॉन्फिडेंस को हम ये समझते हैं कि जब मुझे सब आता है, दैट इज द टाइम व्हेन आई विल बी कॉन्फिडेंट, और पूरा कोर्स कभी नहीं कवर कर पाते हैं। तो कॉन्फिडेंस को आप ऐसे समझिए कि इट इज नॉट व्हेन यू नो ऑल द थिंग्स। कॉन्फिडेंस इज समथिंग कि जो होगा, आई विल बी एबल टू मैनेज इट, आई विल मैनेज इट। और ये कॉन्फिडेंस सिर्फ एग्जाम डे के लिए या एग्जाम के अगले एक वीक के लिए, एक मंथ के लिए नहीं, ये डेली जब आप स्टडी करते हो तभी, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे, टेल योरसेल्फ आज के जो भी टारगेट्स है, आई विल मैनेज इट, एंड ट्राई करो कि आप 80-90% तक रीच कर पाओ। Anyone has any questions? Any questions you people have? Can you please put in the chat box one thing which you learned today in this last 1 hour? All of you, please quickly write in the chat box one thing that you learned today in this last 1 hour. Okay. Thank you, Mavi.
Shabas, would you like to write something that you learned today? Yes, this is very important, not as per others, because see, everyone is different. Everyone have different abilities and different capacities, so you cannot compare directly. Correct. Implementation is the biggest problem. So see, when you know that you have enrolled in this course, और ऐसा नहीं है ना अगर आसान होता तो सब कर लेते. So when you have decided कि करना है तो फिर करना है. Then giving any excuse is not going to help you. Okay, implementation is the only key. अगर आप नहीं implement करोगे तो चाहे कितने भी अच्छे plans बने होंगे, they'll fail. Planning के साथ implementation also makes equal sense. Okay, Shabas, do you have any questions? Okay, guys, I hope this was helpful to you. Thank you for joining. Happy learning. All the best. Thank you so much. Okay, so I'm ending this meeting. If you have any questions, you can still write. Otherwise, I'll end this in a minute. You can reach out on that mail ID only. You would have got a link from the mail. On the same mail, you can contact. Yeah, okay, thank you.